So in this class, we are going to discuss about computer system. So firstly, देख लेते हैं कि what is computer system. तो a computer system is a piece of electronic equipment. Means computer क्या है, एक electronic equipment है that can carry out a wide variety of tasks. Means there is a lot of tasks that you can done with your computer system in just no time, and there is a lot of things we can't do with ourselves. So we can use computer here for calculations, for other mathematical calculations, for all those things we create a computer. Charles Babbage, a British mathematician, is created the first computer. He is also known as the father of the computer because he developed the concept of this calculating machine, which is called computer. Then we let's see what is history of computer, how the computer is developed, how the concept is here that we can use computer. So first क्या होता है कि punch card were used by the French weaver Joseph Jacquard. मीन्स जोसेफ जैक्वार्ड जो थे उन्होंने 19th सेंचुरी में क्या किया था, पंच कार्ड का यूज करके एक मशीन का डेवलपमेंट किया था, जो क्या होता है कि इन फ्यूचर उसका यूज उन्होंने क्या किया, डेटा को स्टोर करने के लिए किया. दैट इज व्हाई इट इज स्टार्टिंग ऑफ this technology. The first electronic computers were developed in 1930s by scientists such as Alan Turing. In 1930s, Alan Turing has tried to develop something which is called electronic computer used to do electronically computing. In the year 1950s, J. Presper Eckert and John Macaulay developed ENIAC 1. ENIAC 1 is also an electronic computer which is developed in 1950s so that you can easily calculate your problems and solve your other calculating things. During the 1960s and 1970s, integrated circuits and microprocessors were made. Means in 1970s, they have created integrated circuits. For using integrated circuits, computers' size were reduced and you can easily calculate your calculations and do mathematical things very easily. Microprocessors also reduces the size of computers and our CPUs, and it increases the capacity of the system. Now we can store a huge amount of data in that time. Here is the diagrammatically representation of the history of computers. First, there is only abacus. 1100 BC ago, it only used to calculate the numbers basically, and in future its advancement came in form of mechanical calculator in 1642. Here we can see there is an automatic loom which is used as storing information. In future it is used to store information. There is a punch cards in 1804. And next, Charles Babbage is also known as father of computer. In 1830s, he developed a calculating machine which is called as basically a computer device or a calculating device which works in Boolean logic in 1850s. After that, Hermann Hollerith developed an electronic tabulator machine which is also does the same work but in a different manner. Those computers were known as analog computers, and other examples of that time, ADVAC, ENIAC, these are the computers which is used like that. And after that, transistors are started using. We can use transistors in our computer systems so that we can do our work. And at lastly, integrated circuits replaced the transistors in late 1950s. And there are some examples of integrated circuit related computers like UNIVAC. Microprocessors are advised here. Altair 8880, Apple II, IBM PC, World Wide Web, these all are introduced in 1990s. Okay, so let's see what is functioning of a computer. There is a lot of things in computer we can do. For those, we have some components like input, processing, main memory, output, storage, networking, operating system. So what is input device? Input device
information and commands once we enter means हम क्या कर सकते हैं अपने whatever information we want to execute हम उन executions को अपने सिस्टम को देते हैं सीपीयू को देन सिस्टम क्या करता है उसको एग्जीक्यूट करता है तो जो डेटा हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को दे रहे हैं उसे ही क्या बोलते हैं इनपुट बोलते हैं फॉर दैट देयर आर a lot of input devices can be used like keyboards mouse microphone scanner I think many of you have been used these type of input devices like keyboard mostly used input devices keyboard and mouse ठीक है in phones we are using microphone scanner for scanning our document these are the input devices used for storing our information into the computer system next one is processing processing means whatever information we are giving to the cpu okay that is that needs to be executed okay for that purpose what we use cpu is stands for central processing unit means ये क्या करता है कि whatever information we are giving to our system using input devices the processor executes that those inputs and give us some results okay next one is main memory is also known as primary memory अब हम जो भी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं अपने सिस्टम से थ्रू प्रोसेसर तो इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन memory so that it can work with that for that purpose here we have main memory or also known as primary memory इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं उन्हें प्राइमरली हम कहाँ स्टोर करते हैं मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं देन सीपीयू वहां से सारे डेटा को एग्जीक्यूट करता है उनको प्रोसेस करता है देन उसको एग्जीक्यूट करता है आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन इट गिव्स अस सम रिजल्ट्स इट टेम्पररी स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स यानी कि क्या करता है कि यह किसी भी इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए जब तक उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेसर के द्वारा हो रहा है तब तक वो क्या करता है इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता है आफ्टर दैट वो क्या हो जाते हैं इरेज हो जाते हैं या फिर रिमूव हो जाते हैं किसी अदर प्रोग्राम के थ्रू ओके सो ये होता है मेन मेमोरी नेक्स्ट होता है हमारा आउटपुट डिवाइस एज नोन एज इट इज गिवन as output यानी कि हमने जो भी प्रोसेसिंग की सीपीयू में whatever instruction I've given to CPU it executes all those instruction it runs those instructions and give us some result which is called as output the result might be in form of text हमारा जो result है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है like text images audio or video using output devices okay it can be any format for different formats there is different kind of output devices like monitor printer or speaker okay we mostly use monitor or printer used for hard copy printings and speaker for audios these are all output devices okay next one is storage what is storage unit so data and programs are stored on computer storage device like hard disk drive or solid state drives or cloud storage मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि हमने जो भी आउटपुट मिला प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू उसे हम क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं कहीं पे वी नीड टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द डेटा व्हाटएवर वी हैव फॉर परमानेंट पर्पस फॉर दैट रीजन वी यूज स्टोरेज डिवाइसेस ओके स्टोरेज डिवाइसेस आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइवर्स और एसएसडीज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो कि बहुत फास्ट होते हैं एंड बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर लेते हैं और साइज में भी बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं यू कैन इजिली स्टोर योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन देयर फॉर लॉन्ग टर्म और उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है क्लाउड स्टोरेज का अगर हमारे सिस्टम में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं अपने डेटा को रिमोट लोकेशन पे क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं क्लाउड स्टोरेज क्या होते हैं पेड भी होते हैं फ्री भी होते हैं तो अगर एक लिमिटेड अमाउंट तक आप डेटा स्टोर करना चाहते हो तो वो आप फ्रीली एक्सेस करते हो किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे या फिर आप बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप उसका पेड वर्जन भी ले सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव ये सारे एग्जांपल्स हो गए जिसमें हम क्लाउडली अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं तो ये क्या हो गया स्टोरेज डिवाइस हो गया नेक्स्ट है नेटवर्किंग मतलब change information and interact with one another computers means if you want to interact with another computer or another system
Then what we use there, the concept is used networking. Here, many computers can link together and communicate together, share informations together using internet or a local network, whatever network available, we can use those to share or communicate with another computer, another system. This is called networking. And the last is here, operating system. Operating system is the heart mainly of a computer system. We cannot work without operating system. It is the software that runs the computer. Okay, whatever system we have, we need an operating system to execute our programs, to communicate with the system, to interact with the system. Okay, works as an interface between software and hardware. हम क्या करते हैं कि तो वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. हमारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं एंड जो भी हार्डवेयर हैं, उन दोनों के बीच हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. मींस हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी आइकन्स हैं उनके थ्रू यूजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं. हर पर्सन को कोडिंग आए ये तो जरूरी नहीं है. आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में उससे कोड कर पाओ, उससे कम्युनिकेट कर पाओ, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी. फॉर दैट पर्पस हियर वी क्रिएटेड operating system. We used operating system. Okay, operating system mainly used as a graphical user interface, which is famous currently scenarios very well. आप सभी देखते ही होंगे, आप फोन्स यूज करते हैं, उसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. एंड आपके कंप्यूटर में आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जांपल हो गया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो इससे आप क्या कर सकते हो? इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने सिस्टम के साथ. आपको कोई भी वर्क परफॉर्म करना इजी हो जाता है. ओके, दीज आर दी फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में वर्क कैसे होता है. तो वो होता है, इसमें 3 प्रोसेसर होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट अभी लास्टली मैंने बताया कि इनपुट क्या होता है, हम जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट. एंड प्रोसेस मतलब वट एवर प्रोसेस थ्रू विच आर इनपुट इज एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्रोसेस. ठीक है, हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जिन स्टेप्स का यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? उसका प्रोसेस कहलाता है. एट द एंड हमें कोई भी जो रिजल्ट मिलता है, हमारा जो भी आउटपुट है, वही हमारा क्या होता है? फाइनल रिजल्ट होता है, विच इज आर आउटपुट. ओके, तो ये होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल. इस टाइप से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्क करता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? इट इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम. बिना सीपीयू के आप सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वैसे ही सीपीयू इंपॉर्टेंट होता है आपके सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनके फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, यहाँ पे मेनली कितने कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द थर्ड वन इज मेमोरी. इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? सीपीयू बनता है. तो यहाँ पे वी कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस. मतलब जितने मैंने इनपुट डिवाइसेस बताए, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, ये सारे इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसको? हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को. अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 2 चीजें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी उसे किस तरीके से प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें बताता है हमारा कंट्रोल यूनिट. एंड सेकेंड है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. तो जितने भी कैलकुलेशंस हैं, सपोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ऑल आर डन यूजिंग अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. ओके, अब इन सभी चीज, इन दोनों प्रोसेस में हमने क्या किया? हमें कुछ आउटपुट मिला, कुछ भी रिजल्ट मिला. सो वी कैन स्टोर इट इन सेकेंडरी मेमोरी. ओके, जहाँ पे परमानेंट स्टोरेज होता है, हम वहां पे क्या करते हैं? हमारे सारे जो भी डेटा यहाँ पे हमसे मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं. एंड यहाँ से जो भी आउटपुट हम लोग को मिल रहा है, हम अगर यूजर को शो करना चाहते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? हम लोग यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. जैसे मैंने बताया, आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, है ना. प्रिंटर्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए. हमें जब हार्ड कॉपी आउटपुट चाहिए, देन वी यूज
output devices as printer. Okay, so overall ये क्या है कि सीपीयू का स्ट्रक्चर है. सीपीयू में मेनली 3 कंपोनेंट्स मैंने बताए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड थर्ड वन इज मेमोरी. इन तीनों को मिला के हमारा क्या बन रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑन डेटा. मींस whatever information we are giving to the system is known as data. Okay, when we process the instruction it becomes a data. Data is, there is a wide variety of data, so we need to process it, we need to manage it, handle it. For that purpose there are some operations, predefined operations that we can use to perform our processing on data. जैसे कि यहाँ पे मेनली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशंस. अरिथमेटिक मींस जितने भी हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, स्क्वायर रूट्स, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किस में आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं. तो ये सारे फंक्शनिंग हम लोग, अगर हम लोग को ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एडिशन वी यूज प्लस ऑपरेटर, फॉर सब्सट्रैक्शन वी यूज माइनस ऑपरेटर, डिफरेंशियल्स देयर आर डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक multiplication or division, modulus. For square root we use double star operator. So these are the data processing operators. Okay, नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेशंस. लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली यूज होते हैं किस लिए, कि हम कंपैरिजन कर पाते हैं किसी भी एलिमेंट्स के बीच. अगर कंपैरिजन करना है हमें तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन. कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का यूज कर लेते हैं, लेस देन का यूज करते हैं. अगर दो एलिमेंट्स के बीच हमको सिमिलैरिटी चेक करनी है कि क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, फॉर दैट पर्पस वी यूज हियर equal to operator. Okay, so these are the logical operators. अब हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन. आप लोग इसका आंसर करेंगे कि who is called the father of the computer. Please answer all of this question. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये सब क्या चीजें हैं. Okay, then move on to the next topic. तो अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं. मींस हमारा कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम मींस देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स, है ना. फॉर देन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट system. So there are mainly 2 components. Okay, first one is hardware and another one is software. ठीक है, there is written as physical component of a computer system are collectively referred to as its hardware. means हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है विच यू कैन टच इज कॉल्ड एज फिजिकल कंपोनेंट. मींस हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका हमारा डेस्कटॉप है, हमारा सीपीयू कैबिनेट है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं. आप इनको क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, आप इसको टच करके यूज कर सकते हो, है ना. तो दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर. दूसरा होता है सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर में रिटर्न होते हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस जिसको हमारा जो सीपीयू है वो फॉलो करता है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, अंडर सॉफ्टवेयर कैटेगरी में. रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जिसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू. अपने मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो सारा किसके थ्रू करते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं. तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ठीक है, मेनली कितने कंपोनेंट्स होंगे, देयर आर 2 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे कि फर्स्ट है हमारा क्या, मोस्टली यूज्ड प्रिंटर. मैंने बताया कि जब भी आपको किसी भी हमारे आउटपुट का हार्ड कॉपी चाहिए देन हम वहां पे क्या यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं. नेक्स्ट है मॉनिटर. मॉनिटर टू सी वट एवर रिटर्न ऑन स्क्रीन इट इज यूज, है ना. मोस्टली मॉनिटर हमने देखे ही है, यूज है इसका. नेक्स्ट है कीबोर्ड. कीबोर्ड एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करने के लिए. हमको कोई भी डेटा इनपुट करना है इन आवर सिस्टम तो देयर वी यूज कीबोर्ड्स. वेट फॉर अ सेकेंड.
ओके, नेक्स्ट है माउस। माउस भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करने के लिए यूज कर सकते हैं। माउस में मेनली क्या क्या चीज होते हैं, एक होता है लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, और बीच में एक राउंड होता है कुछ बटन टाइप्स, वो क्या होता है, स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये दिया हुआ है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मीन्स हम जब भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे डेफिनेटली पावर की नीड होगी, है ना, करंट फ्लो जरूरी है वहां पे। फॉर दैट पर्पस हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पावर सप्लाई। यूनिफॉर्मली पावर को सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, यूपीएस का यूज कर लेते हैं। तो ये एक चीज हो गई। एंड मैंने बताया कि मेन मेमोरी, वट एवर प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन सीपीयू स्टेज इन मेन मेमोरी, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फ्रॉम वेयर वी कैन रैंडमली एक्सेस आवर डेटा। Processor to process our instructions, our problems, whatever we have, we can use to execute those using processor. Next है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, मीन्स जितने कंपोनेंट्स हैं, लाइक यहाँ पे रैम हो गया, यहाँ पे एसएमपीएस है, ये सब किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, मदर बोर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसमें सारे सर्किट्स बने होते हैं जिसके थ्रू हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वर्क करते हैं। ओके, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिवाइसेस, लाइक सीडी डीवीडी, ये सारे क्या है, ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो ये पूरा ओवरऑल हमारा क्या है, हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने बताया कि हार्डवेयर को क्या करते हो, आप टच कर सकते हो। ओके, तो वो हो गए। नेक्स्ट है सीपीयू, रैम, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, हमारे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में, सॉरी हार्डवेयर डिवाइसेस में। और हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, जो भी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, कोई गेम्स हो गए, कोई म्यूजिक ऐप हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर डिवाइस क्या प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम का। वहीं पे सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, दैट हाउ टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम्स और एनी प्रॉब्लम्स। ओके, हार्डवेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद फिजिकल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जो भी हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। बट जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरेक्ट करता है विद यूजर यूजिंग प्रोसेसेस, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेसेस है, एप्लीकेशंस है, उसके थ्रू ये इंटरेक्ट करता है, किससे, यूजर्स से। नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो भी डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो क्या होता है, रिमूवेबल नहीं होता, वो परमानेंटली होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर है, पावर सप्लाई रुक गया है, तो वहां पे क्या हो गया, डेटा इरेज हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। आजकल मोस्टली क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हर जगह पे होता है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, या फिर किन किन एरियाज में हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम का क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स whenever we want to communicate with each other to our society or any people from there, then वो we what we use, like emails हो गया, हमारे messages हो गए, ये सारी चीजें किस में आती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आ जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ईमेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें आई, कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सेस, यानी कि whenever we want to access any information about anything, what we use, इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे टाइप के इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन एक्सेस करना एक क्या चीज हो गया, मेन एक्सपेक्ट हो गया हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन के फील्ड में, जैसे कि आप करेंटली क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें किसमें यूज हो रही हैं, एजुकेशन में यूज हो रही है। तो एजुकेशन में हमारा कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। आजकल हम कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर अपनी स्टडीज कर सकते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हम लोग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस सेक्टर में क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो वर्क कैसे कर रहा है, ग्रो कर रहा है कि नहीं, हाई अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीजें आप लोग फुली अवेयर होगी कि आपके बिजनेस सेक्टर में कंप्यूटर सिस्टम का कितना बड़ा रोल है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट है
मीडिया एंड आर्ट्स। मीडिया यानी कि हमारा यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें मीडिया है। टीवीज हो गया, टेलीविजन जिसमें हम न्यूज पढ़ते हैं या फिर कुछ और चीजें देख रहे हैं। आर्ट्स हो गया वट एवर, ड्रॉइंग, पेंटिंग और अदर टाइप के आर्ट्स लाइक म्यूजिक। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? आर्ट्स में आ जाती हैं, जिनको हम इजिली सीख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। सो वो सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट वी हैव मेडिकल ट्रीटमेंट। तो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच ईच एंड एवरी स्पेस, है ना। For that reason, there is your phone. You can just easily call a doctor, then you'll get consult from them easily, है ना। आपको हर छोटी से छोटी चीजों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। आप फोन करते हो सिंपल, या फिर किसी वेब एप्लीकेशन में जाते हो, आप अपनी क्वेरी लिखते हो, देन यू विल गेट योर आंसर्स। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी क्या हो गया, बहुत इजी हो गया वहां से। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बोल सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च। क्यों? क्योंकि रिसर्च करने के लिए बहुत देयर आर अ लॉट ऑफ डेटा टू यूज एंड स्टोर। टू मेंटेन दोज डेटा वी नीड सम स्पेस, है ना। फॉर दैट रीजन वी हैव व्हाट, कंप्यूटर। हम क्या करते हैं, अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर करते हैं। हम उसको एनालाइज कर सकते हैं इजिली। हम वन बाय वन मैन्युअली अगर उसको किसी भी डेटा को कैलकुलेट कर दें कि कितने नंबर ऑफ डेटा है, कौन किस चीज से बिलोंग करता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यूजिंग द कंप्यूटर इट इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द रोल ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस सेक्टर्स। यानी कि ये जितने सारे अलग अलग फील्ड्स हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसका यूज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उसका रोल इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके ब्रीफली देख लेते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है ना हेल्थ केयर से रिलेटेड, लाइक एक्सरे, ये MRI मशीन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, टेक्निक्स हैं जो हेल्थ केयर में यूज होती है ना। मेडिकल इमेजिंग मतलब क्या, कि हम जो एक्सरेज प्रिंट आउट करते हैं तो वो सारी चीजें आ जाती है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, सारे डेटा को, हमारा जो भी हेल्थ है उससे रिलेटेड डेटा मेंटेन करने के लिए ये यूज होता है ना। टेलीमेडिसिन आपको पहले एग्जामिन करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। मेडिकल फील्ड में वट एवर द रिसर्च इज बीइंग डन फ्रॉम द पास्ट मैनी ईयर्स, यू कैन सी दोज की कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड फील्ड हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने अभी बताया कि बहुत सारी चीजें, हमारा एजुकेशन हम कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। लाइक ई लर्निंग, ई लर्निंग यानी बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, इजिली पढ़ सकते हो। वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। यानी कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल रिमोटली, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो डिजिटली। जैसे कि आपको ये सारा कंटेंट जो मैंने आप इस प्रेजेंटेशन में दे रखा है, वो सारा आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में है, तो वो एक डिजिटल कंटेंट के फॉर्म में है ना। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन बोल दिया आपने, उसको एक्सेस कर लिया। डिस्टेंस लर्निंग, आप अपने घर में बैठे हो बट मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, वो चीज क्या हो गई, डिस्टेंस लर्निंग। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो अपनी नीड एंड टाइम के अकॉर्डिंग। एंड लास्टली क्या है, अडेप्टिव लर्निंग। अडेप्टिव लर्निंग यानी कि यू कैन अडेप्ट विथ योर एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट यू कैन लर्न वट एवर दर इज नीडेड। Okay, like you are somewhere needed a medical facility somewhere, but you don't have any knowledge, but you can gain basic knowledge using YouTube's online consultants. At least basic elements you can learn from there. So this is adaptive learning. ठीक है, नेक्स्ट है अपना फाइनेंस। फाइनेंस में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। आजकल ट्रेडिंग बहुत फेमस है, लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ योर व्हाट एवर इन्वेस्टमेंट इज, ग्रोथ अपर एंड लोअर, हाई एंड लो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मींस बैंकिंग में जैसे कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गए, व्हाट एवर योर डेटा एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन स्टोर्ड इन वेयर द कंप्यूटर सिस्टम ना, यू कैन एक्सेस दोज। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी चीजें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, यानी कि आप अपने इनकम में से अगर आप कोई सेविंग्स कर रहे हो, सो वो सारी सारी चीजें किसमें आती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, कि आप किस टाइम पे कितना सेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो उसके किसके थ्रू, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये करंट में बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि आपके सारे एसेट्स जो होते हैं
वो एक चैन के फॉर्मेट में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, जिसको ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप अपना कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी चीजें क्रिएट कर रहे हो फिजिकली और लाइक का सॉफ्टवेयर, सो वो सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या यूज कर रहे हो? हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम। क्यों? टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, क्वालिटी, है ना, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, मेनली कंप्यूटर का यूज करके इजिली कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का यूज करके हम जो भी डिजाइन करते हैं, आजकल डिजाइन करना कितना इजीली हो गया है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन डिजाइनिंग टूल्स। यू कैन यूज योर creativity to design in form of hard copies, soft copies, whatever you want. For that reason you can use computers. ठीक, नेक्स्ट है रोबोटिक्स एंड इनफॉर्म ऑटोमेशन, यानी कि यहाँ पे सारी चीजें आजकल रोबोट्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे रोबोट्स डेवलप किए जा रहे हैं जो क्या करते हैं लाइक ह्यूमन वर्क करने की कोशिश करते हैं, है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग की जगह रिप्लेसमेंट की तरह हम अगर किसी वर्क को करवाना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ रोबोट क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस कोड करते हैं कि यू हैव टू वर्क दिस और यू हैव टू वर्क दिस। सो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। यू डोंट नीड टू टेल देम ऑल द टाइम, जस्ट यू नीड टू command once and it will work for you. Okay, so these are coming robotics and information. नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। मींस कंप्यूटर्स हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसके डेफिनेटली बेनिफिट्स होंगे और उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोग उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्पीड एंड एफिशिएंसी। आप अपने डेटा को इजिली क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास कोई न्यूमेरिकल डेटा है, बहुत लॉन्ग है वो, तो क्या आप मैनुअली उसको कैलकुलेट कर पाओगे? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बट यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स यू कैन इजिली कैलकुलेट देम, है ना। सो हियर वी हैव क्या? स्पीड। एंड नेक्स्ट वन एफिशिएंसी। ये एक्यूरेटली बिल्कुल सही आंसर देगा आप लोगों को, ये डाउट नहीं होगा कि कुछ गलत है या फिर कुछ मिसिंग है। सो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई। स्टोरेज एंड रिट्रीवल। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोर मतलब हम अपने बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, और वेन एवर वी नीड हम उसको एक्सेस कर लेते हैं कहीं से भी, जब भी हमें जरूरत होती है। जैसे कि हम लोग फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया, हम लोग क्या करते हैं? अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हम लोग को जरूरत पड़ती है हम उनको कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। दोज कम इन द कैटेगरी ऑफ रिट्रीवल ऑफ द डेटा। ओके, ये तो सेम है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है यूजिंग, राइट नाउ यू कैन सी वी आर कनेक्टेड यूजिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटर, है ना। सो दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कनेक्टिविटी। आप कनेक्टेड होते हो अदर पीपल से। प्रोडक्टिविटी एंड ऑटोमेशन। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि इजिली आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है, लो है, पहले कितनी थी, इन फ्यूचर कितनी हो सकती है, ऑटोमेटिकली कैसे इस पे वर्क किया जा सकता है, इसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजें, ये बेनिफिट्स हैं हमारे। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। मेन एडवांटेज कि हम कहीं से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को इजिली एक्सेस कर सकते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सर्च कर लेते हैं, है ना। देयर सर्च इंजन अवेलेबल लाइक गूगल, हम सिंपल सर्च करते हैं कि हमें ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें वो मिल जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो हम लोग, हमारे पास जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है तो हम लोग डिसीजन ले पाते हैं कि विच इज राइट थिंग और विच इज रॉन्ग थिंग। हमारा जो डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी है वो क्या होता है? इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब डेफिनेटली एडवांटेजेस तो होंगे बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस, यानी कि डेफिनेटली आपको पावर की नीड होती है, आपको ऑल टाइम पावर चाहिए होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस होता है। हालांकि देयर इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। आप आजकल लैपटॉप का यूज कर रहे हो बट यू नीड ऑल्सो टू चार्ज इट, है ना। फॉर दैट रीजन इट इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कंप्यूटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड लर्निंग कर्व। मीन्स का यहाँ क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हर कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं यूज कर सकता, उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तभी वो एक्सेस कर पाएगा ना उसमें। अगर किसी को प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो वो फिर वो काम कैसे कर पाएगा? सो उसमें कंप्यूटर में बहुत सी चीजें होती है जो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू कैन सी इन न्यूज ऑलवेज की कहीं से भी किसी ने डेटा चोरी कर लिया किसी का, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो गया, बैंकिंग थेफ्ट होने लग गए हैं ऑनलाइन,
है ना। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, सिक्योरिटी रिस्क में आ जाती है। सो आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली कि कैसे आप यूज कर रहे हो इन सब चीजों से बचने के लिए। एंड नेक्स्ट है प्राइवेसी यूज, है ना। ये तो आजकल बहुत चल रहा है कि किसी का डेटा चोरी हो गया, प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। हेल्थ कंसर्न्स, गूगल सर्च करो आप। मोस्टली क्या करते हैं पीपल, डॉक्टर के पास जाने के बजाय दे सर्च ऑन गूगल, if there I have these symptoms then whatever could be the medicines for that, है ना, ऐसा होता है। सो हमेशा गूगल क्या करता है, यहाँ पे इतने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि आपको नहीं पता कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है और कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है। वहां पे फिर ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास कोई नहीं होता है। सो यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। सो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। कोस्ट एंड अनकीप, यानी कि क्या होता है कि कभी कभी कुछ सिस्टम्स क्या होते हैं आपको यूजेबल नहीं होते, बहुत महंगे पड़ जाते हैं, तो आपको कोस्ट पे इफेक्ट पड़ता है वो सारी चीजें। एंड एनवायरमेंट ऑल इम्पैक्ट, यानी कि एनवायरमेंट मैटर करता है। आप क्या, देर इज टू टाइप ऑफ लाइक मेनली यूज लाइक 32 बिट सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिर वहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है कि कैसा एनवायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, तो वो उसके लिमिटेशंस में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर के फ्यूचर्स क्या हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कंप्यूटर के विदाउट कोई भी काम नहीं होता आजकल के जमाने में, है ना। देयर आर सम सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट दैट सजेस्ट कंप्यूटर्स फ्यूचर डायरेक्शन। मींस क्या, मशीन लर्निंग हो गया, है ना। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सुना ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्या करता है, ह्यूमन की थिंकिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे ह्यूमन थिंक करते हैं वैसे ही हमारा आजकल सिस्टम में ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप की जा रही है दैट इट कैन ऑल्सो थिंक लाइक ह्यूमन एंड परफॉर्म वर्क अकॉर्डिंग टू दोज। ठीक है, विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, आपको बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार प्रोग्रामिंग करो, देन कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, उसको एक्सेस करता है, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट्स देता है, किसी टास्क को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू टैकल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स मच क्विकर, है ना। क्वांटम मींस क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसका यूज क्या करके आप लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे आप किसी बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती है ना। बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप होम से रिलेटेड ले लेते हो, वॉशिंग मशीन हो गए आपके, आपका टीवी हो गया, ये सारी चीजें क्या है, कनेक्टेड होती हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंटरनेट से। क्यों, क्योंकि आप उनको क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, और वो क्या कर रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो स्टोर होगी ना। तो वो सारी चीजें हो गई। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया स्मार्ट होम, जैसे मैंने बताया कि आपका माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीजें आती। हेल्थ केयर मॉनिटरिंग, आप हेल्थ को बार बार रूटीन टाइम पे चेक कर सकते हो इजिली यूजिंग सम एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीजें क्या क्या है आजकल, इन फ्यूचर और ट्रेंड में होंगी और यूजेबल होंगी। ओके, और क्या है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग मीन्स जिस एंड में प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो, वहीं पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे रहे हो। ठीक है, किसी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो आप उसी मॉड्यूल में जाके क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हो। इससे क्या होगा, यू डोंट नीड टू वर्क ऑन होल प्रोग्राम, यू जस्ट नीड टू चेंज इन जस्ट अ मॉड्यूल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी मीन्स, ऑग्यूमेंट क्या होते हैं कि आप जो भी चीजें सिमुलेशन वगैरह देखते हैं ना, कि इट इज एक्चुअली लुक्स लाइक रियल व्हेन वी प्ले गेम्स, वट एवर games we play, their visual effects look like just in real things. So वो सारी चीजें क्या होती है, virtual reality which feels like this is all real but it is actually a computer generated program. Okay, so these come under this category. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑल रिलेटेड टू लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, ओके, बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी कंप्यूटेशनल हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं इन फ्यूचर, है ना। एथिकल एंड सोशल इम्पैक्ट्स, यानी कि मोस्टली मैंने अभी बताया कि डेटा प्राइवेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्यूचर। यू हैव टू बी एबल टू प्रोटेक्ट योर डेटा, यू नो हाउ टू यूज दोज डेटा एंड वेयर टू प्रोटेक्ट इट। ओके, दीज थिंग्स कम्स अंडर दीज कैटेगरी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंडियन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो हमारा इंडिया, यहाँ पे किस टाइप की कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है या फिर कहाँ पे ग्रोथ हो रही है, क्या चीजें हैं, तो इसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक आईटी सेक्टर ग्रोथ, है ना। हमारे आईटी सेक्टर्स में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे भी। जैसे कि हमारा
बैंगलोर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ आईटी। यहाँ पे सारी चीजें होती है आईटी से रिलेटेड, मैक्सिमम ग्रोथ वहाँ पे होता है आपका। इंडस्ट्रियल एरिया में है ना, पूरा वो रिलेटेड है, कंप्यूटर का फील्ड है वो पूरा। तो वो चीजें हो गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी अवेलेबल है, यू कैन डेवलप एनी सॉफ्टवेयर इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग, यू कैन लर्न इजिली, देन यू स्टार्टेड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप रिसर्च की फील्ड में जा रहे हो तो आपका कंप्यूटर जो है आपको हेल्प कर रहा है डेटाबेस मैनेज करने में, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव्स ओपन करके रखी है, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड स्किल्स, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। आईटी एजुकेशन एंड कंपोनेंट वर्क फेस, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या होता है कि हमारे आईटी से रिलेटेड, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन अवेलेबल हो गए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, इंडियन कंप्यूटिंग एनवायरमेंट में आती है, ठीक है। एंड लास्टली एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज का कि क्या है, ठीक है। आप लोग आंसर किए करिए इस क्वेश्चन का, अभी हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड है।